السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ ٹی کے دیکھ رہے ہیں. فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی تجزیہ کار ثابت شاکر صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. ایک مرتبہ پھر سے بہت سی خبریں ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی ڈسکس کریں گے. کچھ عمران خان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن آغاز کر لیتے ہیں. دنیا کو بڑا مثبت چہرہ دکھایا جا رہا ہے. دنیا کے صحافیوں کے ساتھ یہاں کیا کچھ ہوا ہے آپ جانتے ہیں. گلاب جامن اور بڑے بڑے کھانے کھلائے گئے ہیں, لیکن سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب کو NCCI آج گرفتار کر کے گھر سے لے گیا. جی بالکل, اصل پرابلم یہی ہے کہ پاکستانی میڈیا کو بالکل بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہی باتیں وہی خبریں فخر الرحمان دے رہے تھے. سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں, بہت ہی سینسیبل ہیں, رسپانسیبل ہیں, قومی اور بین الاقوامی اداروں میں کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں, سپریم کورٹ کو کور کرتے رہے ہیں طویل عرصے تک میرے ساتھ. تو وہ وہی کچھ رپورٹ کر رہے تھے اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے, ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے, جو زمینی حقائق ہیں. وہ باتیں نہیں بیان کر رہے تھے جو کہ واٹس ایپ پہ آتی ہیں, یا بالکل ایک بیانیہ بنانے کے چکر میں وہ نہیں تھے, اور ان کی بات کو سنا جا رہا تھا. وہ تہران سے بھی رابطے میں تھے, وہ اپنے نمائندگان جو ترکی کے تھے تل ابیب میں, یروشلم میں, ان کے ساتھ بھی رابطے میں تھے, واشنگٹن کے ساتھ بھی رابطے میں تھے. وہ ایک وسیع ان کے پاس تجربہ بھی ہے, اور ایک وسیع نقشہ بھی ان کے پاس موجود تھا. اس پوائنٹ آف ویو سے وہ گفتگو کر رہے تھے اور بتا رہے تھے. اور ان کو گرفتاری ان کی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں, پاکستانی صحافی ہیں, ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, پاکستانی کا شناختی کارڈ ہے. ورنہ تو اس سے زیادہ کہیں زیادہ سخت گفتگو غیر ملکی میڈیا کر رہا ہے, اور غیر ملکی میڈیا کے نمائندگان رپورٹ کر رہے ہیں. چونکہ وہ غیر ملکی ہیں, گورے ہیں, امریکہ, برطانیہ, جرمن, فرانس, یورپ سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے ان کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو یہی المیہ پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے. اس لیے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل بے توقیر ہو گیا ہے, عوام سے کوسوں دور ہے. یہاں تک کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اسلام آباد کے لاک ڈاؤن کو, جو کہ بدترین قسم کا لاک ڈاؤن ہے, اور ایسا لاک ڈاؤن جو کہ تہران جنگ ہوئی تہران میں, ابو ظبی میں, دبئی میں, کویت میں, بحرین میں, لبنان میں, سعودی عرب میں, اور ان سب ملکوں میں لڑائی ہوئی, اور انہوں نے بھی اتنا بڑا لاک ڈاؤن نہیں کیا, اتنی بڑی وہ اپنے شاہراہیں بند نہیں کی, اور کاروبار بند نہیں کیے, تجارتی مراکز بند نہیں کیے, ٹرانسپورٹ بند نہیں کی, اڈے بند نہیں کیے, جو اسلام آباد میں پچھلے 2 ہفتے سے سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ رپورٹنگ لیکن ہمارا میڈیا نہیں کر سکتا. تو فخر الرحمان کی جو گرفتاری ہے وہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد مذاکرات ناکام ہوئے, ایران اور امریکہ سے مہمان تشریف نہیں لائے, اور وہ حقائق بیان کرتے رہے. کیونکہ یہ 20 تاریخ کی FIR ہے, 20 اپریل کی, اور اس میں بہانہ یہ بنایا گیا ہے, اس میں میرے خلاف بھی FIR ہے, فخر الرحمان کے خلاف بھی ہے, رضوان غلزائی بھی ہیں, موہت پیرزادہ بھی ہیں, عادل راجہ بھی ہیں, حیدر مہدی بھی ہیں, جتنے بھی بیرون ملک ہیں ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے. اور بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ جو شیعہ علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی, اور جو دھمکی آمیز گفتگو شیعہ علماء نے باہر آ کر بیان کی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا, اس کو رپورٹ کیوں کیا گیا. اور بہانہ وہ بنایا گیا ہے جو کہ 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے, اور واقعہ اس کو رپورٹ 2 مہینے بعد ایک درخواست درج کی گئی اور گرفتار کیا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں نے اور آپ نے تو ناکام نہیں کروائے, اور ہم نے تو نہیں کہا کہ ایران کا وفد نہ آئے اور امریکہ کا وفد نہ آئے. یہ تو ان کے اپنے غلط میسیجنگ ہے, کیونکہ یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ثالث ہیں. ثالث نہیں ہیں. آپ فائنینشیل ٹائمز پڑھ لیں, آپ اکانومسٹ کو پڑھ لیں, آپ وال اسٹریٹ جرنل کو پڑھ لیں, آپ بلومبرگ کو پڑھ لیں, آپ نیو یارک ٹائمز کو پڑھ لیں. چلیں ہم انڈیا کا نام نہیں لیتے اور اسرائیلی میڈیا کا نام, ان سب کو پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ جو FM کا رول ہے, فیلڈ مارشل کا رول ہے, وہ ایک بروکر کا رول ہے, اور وہ جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو, فوجی اقتدار کو طول دینے کے لیے کر رہے ہیں. ایسے معاملات, ایسے اقدامات کر رہے ہیں. ان کی پریزیڈنٹ امریکہ کے ساتھ, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, ان کے بیٹے کے ساتھ, ان کے داماد کے ساتھ کوئی ڈیل ہو, یا وٹکوف کے بیٹے کے ساتھ کوئی ڈیل ہو, کوئی کرپٹو کرنسی سے متعلق ڈیل ہو, کوئی MOU سائن کرنا ہو, کوئی منرلز کا معاملہ ہو, اس سارے کے پیچھے وہ ایک ہی ہے. اور پھر امریکہ میں جو لابسٹ انگیج کیے ہوئے ہیں, اور ان کو قومی خزانے سے پیسے دیے جا رہے ہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ, اور وہ بھی صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے ذاتی اقتدار, اختیار اور عہدے کو طول دینے کے لیے. اور فائنینشل ٹائمز کی اکانومسٹ کی اسٹوری ہے, اس میں انہوں نے کھل کر بیان کر دیا کہ یہ فیلڈ مارشل کا 10 سال سے زیادہ کا اقتدار میں رہنے کا ارادہ ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں, جب آپ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بہت بڑی بڑی اپنے ذمہ کام لے لیتے ہیں, اور پھر وہ کر نہیں پاتے, تو وہ اس کا الٹیمیٹلی اس کا سیٹ بیک آنا ہوتا ہے. اور وہی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اب فخر الرحمان کی گرفتاری, کل کو کسی اور کی گرفتاری ہو جائے گی, اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا.
साबिर साहब, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में बैठे हैं, बात भी नहीं की जा सकती खुलकर, लेकिन ये जो एफआईआर का मतन आप बता रहे हैं, द रीजन बिहाइंड ये अरेस्ट जो हुआ है, तो ये तो इस मौजूदा तनाजुर में जब टॉक्स का पूरा माहौल है, सब कुछ है, सड़कें बंद है, बड़ा सेंसिटिव मतन नहीं? जी बिल्कुल मैसेजिंग हो रही है, तो फिर किसी एक तरफ को देखिए वही बात है कि ये मैसेजिंग ही है, और आपने सही पॉइंट आउट किया है, क्योंकि मामला है 2 महीने पहले का, 1.5 महीने पहले का, और उस वक्त भी कहा गया कि जिसको ईरान पसंद है ईरान चले जाएं। और जब हुआ उसके बाद ये हुआ कि जब आपकी तरफ से तो इनकी तरफ से तो कोई जवाब हो गया था, वो तो चाइना ने इंटरवीन किया और मामला को संभाला और एक मुज़ाकरात का डोर डाला गया और मुज़ाकरात शुरू हो गए। और उसके बाद ये फौरन खुद पहुंच गए, तेहरान पहुंच गए मोहसिन नकवी साहब को लेके। अब उसमें भी एक मसला है, मसला ये है कि आप तेहरान जा रहे हैं, आपके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होना चाहिए, आपके साथ गवर्नमेंट का कोई और नुमाइंदा होना चाहिए। आपने मोहसिन नकवी साहब को साथ लिया, आपने किसी और को साथ नहीं लिया, क्योंकि आप व्हाइट हाउस जाते हैं तो मोहसिन नकवी साहब साथ होते हैं, आप अदरवाइज कोई डील करनी होती है, कोई मैसेजिंग करनी होती है, मोहसिन नकवी साहब के साथ करते हैं। तो ये खुद ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब अगर वजीर आजम ही बन जाए तो हम क्या कर लेंगे। तो मसला यही है कि बंद कमरों के जो फैसले हैं वो असल प्रॉब्लम है। बंद कमरों में फैसले, जाती इख्तियार और जाती सियासी इख्तियार का एजेंडा जो है उसको तूल देने के जो मामला हैं वो असल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इसीलिए बात मशरिक की होती है और घुमा दी जाती है मगरब की तरफ। और ये जो एफआईआर है ये भी यकीनन खुश करने के लिए की गई होगी कि देखें जनाब, हम जो है इस तरह का हमारी पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी ये है। अब मोहसिन नकवी साहब वही निगरान वजीर आला हैं, वही 9 मई के किरदार हैं, वही 26 नवंबर के किरदार हैं, वही मुरीद के किरदार हैं, वही एफआईए के इस वक्त डीजी हैं जो इन सारे किरदारों के साथ साथ चलते रहे हैं। तो ये एक खास एक ग्रुप है जो कि ये सारे हरकत और सकनात कर रहा है और उसका नुकसान पाकिस्तान को रहा है। और एक ऐसे मौके पे ये गिरफ्तारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ किया जा रहा है कि जब अक़वाम मुत्तहिदा में जेनेवा में हियरिंग हो रही है और पाकिस्तान से मुतालिक हो रही है और वहां पे बैरिस्टर अकील गए थे और उनसे जवाब तलबी हुई है, वो कोई जवाब नहीं दे सके क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के ऑफिशियल्स ने पूछा कि आप इमरान खान के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ, सियासी कैदियों के साथ और सहाफियों के साथ और इंसानी हुकूक के वर्कर्स के साथ जो कुछ कर रहे हैं, आप इसका जवाब दें कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और आपका इसको क्यों कर रहे हैं। ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है और इंटरनेशनल लॉ के और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। ईमान मजारी इस वक्त गिरफ्तार है, महारंग बलोच गिरफ्तार है, ईमान मजारी के शौहर गिरफ्तार हैं, फलक जावेद हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। यानी कि किसी को भी ये माफ करने के लिए तैयार नहीं है और एक मुसल्लत शुदा निजाम है। और यही ये एफआईआर भी उसी की सिलसिले की एक कड़ी है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसमें भाई सहाफियों का क्या कसूर है। और अगर आपने पकड़ना है तो कल मैं देख रहा था इतनी लंबी रिपोर्ट अल जजीरा की खातून जर्नलिस्ट जो बयान कर रही थी। तो भाई आप जो गैर मुल्की जर्नलिस्ट हैं उनको आप गाड़ियों में बिठा के प्रोटोकॉल दे रहे हैं, गुलाब जामुन खिला रहे हैं, जलेबियां खिला रहे हैं और उनकी आओ भगत कर रहे हैं कि वो वापस जाके आपके हक में कोई आवाज बुलंद करेंगे, खुश होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा वही बजाएंगे इनकी, और वो इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि जनाब ये 14 दिन से आपने इस्लामाबाद बंद किया हुआ है और आया कोई भी नहीं। आपने 6 जहाज मंगवा लिए अमेरिका से और उनकी सिक्योरिटी के सारे बंदोबस्त करवा लिए कि जनाब हम बस घेरने वाले हैं। तो ये है असल प्रॉब्लम कि जब आप सही मैसेज कन्वे नहीं करेंगे, सिर्फ अपना सोचेंगे तो फिर पकड़े भी जाएंगे। सर ये पॉलिटिकल सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है पाकिस्तान में। बुशरा बीबी की तबीयत पिछले दिनों बहुत नासाज हुई, बिन बताए फैमिली को ले जाया गया, सब कुछ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल बताइएगा, क्योंकि जलसे से भी बैक ऑफ कर दिया जाता है, जलसे के बदले में कुछ मांगा भी नहीं जाता, कोई सड़क के ऊपर कुछ भी दिख नहीं रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। इसके पीछे क्या है? देखिए बात यह है कि वो बेचारे बड़े मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं और वो 9 मई भुगत रहे हैं, 26 नवंबर उन पे हो चुका है और फिर आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो उनके सामने है, गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हुआ, स्कर्दू में जो कुछ हुआ ये हमारे सामने, यानी गोलियां चला रहे हैं और लाशें गिरा रहे हैं। ये तो अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरा ये कि बेशुमार मुकदमात हैं, सबसे ज्यादा सियासी रहनुमा, सियासी कैदी उनके हैं और किसी को भी ये स्पेयर नहीं कर रहे। तो इस मामले में इन हालात में करना क्या है, इन हालात में वो क्या करें? या तो एक सूरत यही है कि दोबारा से आएं और दोबारा आके टकरा जाएं, तो उसके जवाब में फिर वही होगा, कहा जाएगा कि देखें जनाब ईरान अमेरिका जंग छिड़ रही है
खतरात मंडला रहे हैं, कौमी सलामती के मसाइल हैं, और ये जमात है जो अपने ज़ाती एजेंडे पे लगी हुई है। इमरान खान साहब ने जेल से यह पैगाम भेजा कि आप 9 अप्रैल की जो कॉल है वो वापस ले लें, एहतजाज ना करें। ये इमरान खान साहब इस बात की अभी तक तरदीद नहीं आई, और सलमान सफदर साहब के जरिए ये मैसेज आया। ये तो है एक ग्राउंड रियलिटी। अब दूसरा यह है कि इमरान खान की रिहाई के लिए और बुशरा बीबी की रिहाई के लिए और उनके इलाज मुआवजे के लिए क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान के अंदर रहकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और ये इस वक्त सबसे बड़ी तगड़ी अपोजिशन पार्लियामान है, पार्लिमानी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये सब के सब बड़े तगड़े लोग हैं, और बलूचिस्तान से इनके साथ मौजूद हैं, सिंध से हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह इनका नुमाइंदगी मौजूद है। इनको चाहिए ये कि दो तरह की स्ट्रेटजी इख्तियार करें। एक, पार्लियामान के अंदर पंजाब असम्बली में आवाज बुलंद करें, और वहां पे खास तौर पे पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो अगर ये रोजाना की बुनियाद पे बेशक 1 घंटे के लिए ये कौमी असम्बली से और पार्लियामेंट लॉजिस से निकलें, और तमाम MNAs, सेनेटर्स कभी सुप्रीम कोर्ट के सामने 10 मिनट का एहतजाज करें, कभी हाई कोर्ट के सामने करें, कभी इलेक्शन कमीशन के सामने करें, एक एहतजाज करें, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सामने करें, ईवान सदर के सामने करें। ये इस तरह के इवेंट जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने चाहिए, और इसी तरीके से सूबाई सतह पे भी इसी तरह के इकदाम करने चाहिए। फिर पार्लियामेंट के अंदर रह के पार्लियामानी बिजनेस जो है उसको वहां पे इनको मफलूज करें। ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे कम से कम इनको इंटरनेशनली इनको तवज्जो मिलेगी, वो करना चाहिए। पुरअमन भी है, पीसफुल भी है। दूसरा ये कि ये जो तहरीक है जी, ये इस तरह से नहीं चलती होती कि आप पेशावर से निकलें, क्योंकि ये तजर्बात जो हैं ये 1 डे 2 डे 3 डे प्रोग्राम नहीं है, ये टेस्ट मैच है। और खास तौर पे जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, इकोनॉमिस्ट की स्टोरी है, फाइनेंशियल टाइम्स की, कि जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि इनका इरादा तो है कि ज्यादा से ज्यादा अपने इख्तिदार को तूल देना, और फौजी इख्तिदार को तूल देना, अपने आप को मजबूत करना। तो डिक्टेटर से जब आपने उस तरह वापस लेना है और छुरी वापस लेनी है, तो वो बड़े तरीके से लेनी पड़ेगी। और एक मुसलसल फेस में ये है कि ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है। हमारे किसान किधर हैं, हमारे ताजिर किधर हैं, हमारे तलबा किधर हैं, हमारे वकला किधर हैं, और हमारे सहाफ़ी किधर हैं। ये सब, क्योंकि ये सिर्फ आइन शिकनी हो रही है, हमारे इदारे मस्मार हो रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान का मसला तो नहीं है, ये PTI का मसला तो नहीं है, ये तो तमाम जितने भी हमारे शहरी हैं उन सब का मसला है, तमाम इदारों का मसला है। तो ये ना सिविल इदारे महफूज हैं, ना अस्करी इदारे महफूज हैं। तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। सर, पार्लियामान से इस्तीफे, इस हवाले से भी खबर चल रही है कि गालिबन कहा जा सकता है, लेकिन मौजूदा लीडरशिप जो ग्राउंड पर मौजूद है, आपको लगता है, क्योंकि आपने बताया है कुछ सिनेरियो के कितना मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कि अगर ये हुक्म आ जाता है तो पार्लियामेंट से इस बार इस्तीफे दिए भी जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इस्तीफे देने चाहिए फ्रैंकली, क्योंकि इस्तीफे देने के बाद आपको क्या होगा? इस्तीफे देने के बाद ये सारी की सारी सीटें दे दी जाएंगी मुस्लिम लीग नवाज को, पंजाब की सारी सीटें उसके हवाले कर दी जाएंगी, कोई 2-4 मौलाना साहब को दे दी जाएंगी, कोई पीपल्स पार्टी को दे दी जाएंगी। तो उसमें मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल हो जाएगा, और फिर जाहिर इस्तीफे देंगे तो ये इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। जब ये इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे और इलेक्शन करवा देंगे, तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि ये फॉर्म 47 के लोग हैं, ये जाली इलेक्शन है। आप बाइकआउट करेंगे और उसी को वो उस पर मोहर लगा देंगे, तो इस निज़ाम को, जाली निज़ाम को वो मजीद तगड़ा करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर ये 70-80 MNAs जो हैं और सेनेटर्स जो हैं, MPAs हैं सिंध में, पंजाब में, ये अपनी इसी तरीके से पंजाब में ये एहतजाज करें और रोजाना निकले पंजाब असम्बली से बाहर तमाम MPAs, और माल रोड पे एहतजाज करें, वज़ीर आला ऑफिस के सामने करें, 10 मिनट के लिए भी निकलेंगे तो उससे भी फर्क पड़ेगा। फिर यह कि हमारी वकला कम्युनिटी किधर है, और वो हफ्ते में एक दिन भी, 1 घंटे के लिए भी बाइकआउट नहीं कर सकते? क्या वो एक दिन के लिए भी अपने बाजुओं पे स्याह-पट्टी नहीं बांध सकते? फिर हमारा मीडिया किधर है? हमारे मीडिया को क्या करना चाहिए? क्या मीडिया इससे मजीद कोई बदबख्ती आएगी कि जो आ चुकी है? आपको बात करने की इजाजत नहीं है, कोई लाइव प्रोग्राम आप नहीं कर सकते, और रिकॉर्डिंग प्रोग्राम है, चेक होते हैं, हर इदारे में चेक हो रहा है, तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये डिक्टेटरशिप से जान छुड़वानी है, तो उसके लिए मल्टी डायमेंशनल किस्म की एक मूव करनी पड़ेगी, और सबको मिलकर करना पड़ेगा। किसी एक को हम दोष देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, और इस्तीफे ऑप्शन नहीं है। अगर कौमी असम्बली से वो इस्तीफे दे दें तो वो कहेंगे जनाब सेनेट से क्यों नहीं दिए, और फिर आप खैबर पख्तूनख्वा से भी दे दें, फिर आप पंजाब असम्बली से भी दे दें। तो ये सारे का सारा जो है, ये पार्लियामानी कुव्वत है, एक अवामी कुव्वत है और एक पार्लियामानी कुव्वत है, वो उसी में इस्लाह करनी चाहिए। सर,
कुछ सहाफ़ी ये खबरें भी दे रहे हैं, तासुब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं खबर की बुनियाद पर, खास तौर पे मैं कोट करूँ तो असदुल्ला खान साहब ने कहा है कि खबर की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो जलसा है उसके बदले में पीटीआई इसलिए कुछ मांग नहीं रही है, खामोश हो गई है कि इमरान खान के लिए चीजें बहुत मस्बत सिमत में जा रही हैं। डू यू रियली थिंक सो, या आपके पास कोई ऐसी खबर या कोई तज्जिया? देखें, जब तक इस बारे में कोई चीज सामने आ नहीं जाती, ये हर ऐसे मौके पे डाइवर्ट किया जाता है। ये खबर सही भी हो सकती है और डाइवर्जन भी हो सकती है। माजी में भी ऐसा हुआ कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, इमरान खान से इन्होंने फेवर ली, पीटीआई से फेवर ली, इमरान खान साहब की फैमिली से फेवर ली और उन्होंने फेवर दी। आप पीछे चले जाएं, 1 साल होने को है, पाकिस्तान और भारत की लड़ाई शुरू हो गई और उस वक्त इंतहाई सीनियर मोस्ट जो हैं फौजी अफसर, वो इमरान खान साहब से पास इन्होंने भेजे कि जाके उन्हें कहें कि इस मौके पे हमारी मदद फरमाएं। तो इमरान खान ने कहा था कि ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है और हमारी कोई लड़ाई आपसे कोई जाती तो है नहीं। तो उस वक्त भी सोशल मीडिया सारे का सारा वो पीटीआई का था, सहाफ़ी सबके सब मुत्तहिद हो गए, मुत्तफिक हो गए और उन्होंने उसमें जो अपना एक कौमी फरीज़ा था वो अदा किया। उसमें फिर DGISPR आए, उन्होंने सबकी तारीफ की, हम सबकी भी तारीफ की, शुक्रिया अदा किया। लेकिन जैसे ही मतलब निकल गया तो हमारे फिर उसी तरीके से गिरबान पकड़ना शुरू हो गए। 85 साल सजाएं सुनाई गई, फिर लोगों को जेलों में डाला गया, फिर अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया गया, लीडर ऑफ अपोजिशन को, पंजाब असम्बली को, फिर अहमद खान भच्चर को, उमर अयूब साहब को, शिबली फराज को, सबको जरताज गुल को, जितने भी थे उनको डिस्क्वालीफाई करके उनको फारिग किया गया और मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत दिलवाई गई। तो इसलिए जब इनको जरूरत पड़ती है ये पांव पकड़ते हैं और जब इनकी जरूरत निकल जाती है तो फिर वो गिरबान पकड़ते हैं। तो इसलिए इमरान खान की आंख जाया हो चुकी, 85% का मतलब है कि एक आंख जाया हो चुकी है। और ये किसने बताया? ये सरकार खुद बता रही है, क्योंकि कोई और नहीं मिला, सरकार ने बताया और मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं जो उनके पास मौजूद हैं। बुशरा बीबी की आंख जाया हो गई, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है, एजाज चौधरी साहब के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ये कोई ऐसा होता है तो फिर उनको तो कम से कम रिलीफ देना चाहिए और उनकी रिहाई शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सारे के सारे उम्र अफराद हैं, बहुत बेशुमार लोग हैं, खवातीन हजरात अंदर बैठे हैं, उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी जमानतें होनी चाहिए, क्योंकि किसी की दरखास्त जमानत ही नहीं लग रही, राइट ऑफ अपील नहीं दिया जाए, राइट ऑफ बेल नहीं दिया जा रहा। तो मैं नहीं समझता कि इन हालात में हमें इसको बाय करना चाहिए कि कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं ना, जी नजर आना होती हैं, वो तो नहीं आ रही। सर, अब जाते जाते एक सवाल है, आपने आज एक मर्तबा का सहाफ़ी के दे रहे हैं, दूसरी मर्तबा का मीडिया के दे रहे हैं, शुरू में भी आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली आप भी एक वक्त तक एक तवाना आवाज रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर, आपके भी राब्ते होंगे अपने पुराने सब साथियों के साथ, कभी आपने ये सवाल वहां पूछा नहीं या कोई पैगाम रसानी करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जो किरदार आज मीडिया का है, खासतौर पर उस इदारे का जहां पे आप खुद काम करते रहे। मेरा ख्याल है कि जो मजबूरियां हैं, मुआशी मजबूरियां, और मैं इतनी बात कहूंगा कि अगर आपने अपने माली मफादात जोड़ लिए हुकूमत के साथ, हुकूमती इदारों के साथ, सिविल और अस्करी इदारों के साथ, तो फिर आप माली मफादात के हाथों मजबूर हो जाते हैं, फिर आप उसका दिफा करते हैं, उसको बचाते हैं। और अगर आपके माली मफादात ना हो और आपने इंडिपेंडेंटली अपना काम किया हो तो फिर आप काम करते हैं। आप यही काम हमारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उन दोस्तों का है जिनके माली मफादात कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, वो उनके साथ जुड़ गए हैं, वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे, और जिनकी नज़र मालो दौलत पे है और उनका सिर्फ अपनी ठाठ बाट पे है और उस पे है, तो वो तो वही काम कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं, जिनका काम है वाकईतन जो प्रोफेशनली और एक मोटो के तौर पे लेके चल रहे हैं, एक पैशन के तौर पे लेके चल रहे हैं, वो डटे हुए हैं जी। वो ऑफियर भी हो गए, वो मार भी खा रहे हैं, मुकदमात भी दर्ज कर रहे हैं, सजाएं भी भुगत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो खवातीन हजरात जो हैं वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हम जो नहीं कर रहे उनको हम ये जरूर कहेंगे कि वक्त तब्दील हो जाता है और पलक झपकने में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए उससे पहले कि कुदरत की तरफ से फैसला आ जाए, खुद भी हिलजुल करनी चाहिए, क्योंकि ये दौलत शौलत सारा कुछ ये यहीं रह जाता है और इंसान का किरदार जो है वो तारीख में जिंदा रहता है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि अपना अपना काम करते रहना चाहिए। उनको वो अच्छा लगता है वो करने दें, हमें ये अच्छा लगता है हम ये कर रहे हैं।